Good evening, everyone. Thank you for joining us today. I'm Keksha Niazi, hosting today's session. On behalf of Sante Private Limited, I would like to welcome you all to our live session. In this series of live sessions, we'll be inviting renowned consultants to talk about different topics related to skin and cosmetology. आज के सेशन में हम बात करेंगे एक्ने के हवाले से, which is the most common condition of skin. और जैसे कि हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो हमारे टीनेजर्स हैं, they are the ones who are most affected due to this problem. While it's most often associated with puberty, acne can strike at any time during your lifetime. I'm sure हमारी audience में भी काफ़ी लोग ऐसे होंगे who at some point in life were affected due to acne or still are suffering from this disease. It's a pleasure for me to introduce our guest today. We consider it a great honor कि आज इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं. She has been actively involved in different radio and television shows. और इसके अलावा she has been writing different articles in magazines, newspapers and social media. She is also an aesthetic physician and conducted different scientific programs of dermatology and also a member of different advisory boards. One of the most renowned and leading cosmetologists, consultant dermatologist, and laser therapist of Pakistan, Dr. Najia Ashraf. Dr. Najia Ashraf did her MSc Clinical Dermatology from St. John's Institute of Dermatology, King's College, London. Thank you very much, Dr. Najia, for joining us today. It's great to have you here with us. Assalamu alaikum and thank you very much, Kehkesha, for such a great introduction. And thank you very much for inviting me to this show. It's a Facebook live show, so it's different from the usual TV shows I do. And I'm really honored that you invited me. And I would like to thank Sante for arranging all this for us so we can exchange some information. And at the same time, we could talk about the very burning and hot topic acne vulgaris. You're welcome, ma'am. अच्छा, यहाँ मैं डॉक्टर नाजिया की क्लिनिक के हवाले से बताती चलूँ. Her clinic name is Skin and Laser Clinic. Her clinic's address is 12C, first floor, 6 Zamzama Lane, Karachi. The clinic information and number for appointment is shown in the ticker below. अच्छा, Dr. Najia, before we move on to our questions, I'd like to know that how frequently do you come across patients जो कि आपके पास acne के हवाले से अपने मसाइल लेकर आते हैं? देखिए, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन हम एक्नी के बहुत सारे मरीज़ ना देख लें और जो हम जब टर्म्स और एक आपस में गुफ्तगू करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट या स्टूडेंट्स को जब पढ़ाने की बात आती है और उनको बताया जाता है कि एक्नी की सिग्निफिकेंस क्या है, तो डर्मेटोलॉजी के अंदर किसी को एक्नी ना आती हो, ये फर्स्ट टॉपिक होता है जो बच्चों को पोस्ट अंडर ग्रेजुएट को, इवन मैं भी जब डर्मेटोलॉजी के बोर्ड में गई थी फर्स्ट टाइम, तो हमें सबसे पहली चीज़ एक्नी ही बताई गई थी क्योंकि ये सबसे कॉमनली नज़र आती है। और डर्मेटोलॉजिस्ट को कहा जाता है कि उनकी प्रैक्टिस का ब्रेड एंड बटर अर्नर जो है वो ये बीमारी है, क्योंकि ये इतनी कॉमन है कि जितनी ज्यादा आपके पास आ रही होती है उतनी ज्यादा पेशेंट्स देख रहे होते हैं, तो ये बहुत कॉमन है प्रॉब्लम। और अगर हमने किसी की तालीम को जज करना हो डर्मेटोलॉजी के हवाले से कि उसको कितनी इंफॉर्मेशन है एज ए मेडिकल स्टूडेंट या डॉक्टर, तो वो एक्नी पर ही गेज होती थी, क्योंकि ये इतनी कॉमन थी कि अगर ये नहीं पढ़ा तो फिर आगे और क्या पढ़ा होगा। जैसे एक्जेमा है, एक्नी है, सोराइसिस, फंगल, ये 3 4 5 ऐसी चीजें हैं जो बहुत कॉमन है। तो अगर किसी को ये भी ना आती हो तो फिर उसे एग्जाम पास करना जरा मुश्किल हुआ करता था, तो इसलिए ये एक बहुत बहुत कॉमन है। आई एम श्योर हम सब अपने घरों में भी ये बहुत देख रहे होते हैं, देखते हैं, और हम में से बहुत सारे लोग इसके साथ बड़े भी होते हैं जब छोटे से, जब हम बचपन से टीनेजर की तरफ बढ़ते हैं। और ये सिर्फ टीनेजर्स की नहीं, अब 20s में, 30s में, प्री प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, किसी को किसी भी फेज में आ जाता है। बिकॉज इसका जो कोर इशू है, जो लोग जिस पे नहीं ज्यादा फोकस कर पाते, जो कि अब आजकल शुक्र है कुछ इस बात की अवेयरनेस के बाद, इतना साल समझाने और बताने के बाद अब समझ आया, इसका कोर इश्यू हार्मोनल है। अब हार्मोन जब चेंज हुए तब आपके साथ ये प्रॉब्लम्स आएंगे, अदरवाइज इसके चांसेस जरा कम। अच्छा डॉक्टर नाजिया, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक्नी होती किस वजह से है, अगर इसको आप थोड़ा डिटेल में बता सकें कि व्हाट आर द मेजर कॉजेस और फैक्टर्स कह लें दैट लीड टू एक्नी ब्रेकआउट्स। एक्ने के ब्रेकआउट्स होने के लिए बहुत सारी वजूहत है। सबसे पहले अगर हम एक एज वाइज डिवाइड कर ले तो आई थिंक चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी आसान हो जाएंगी।
सबसे पहले हम देखते हैं टीनेजर्स में, ये जी। कई लोगों को 9 इयर्स की एज में भी स्टार्ट हो जाता है हुँ, और ये आगे बढ़ते-बढ़ते समझ लें कि फिर वो जैसे टीनेजर में होते हैं उसमें आ जाता है। चाहे लड़के हैं, चाहे लड़कियाँ। लड़कियों को ये उस वक़्त भी आ जाता है जब उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं, तो उसके साथ इसकी ज़रा अपीयरेंस बहुत जल्दी आ जाती है। कई लोगों को उसके साथ थोड़ी देर से भी आ सकती है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा ना हो तब भी पहले से छोटे-छोटे से दाने आना शुरू हो जाते हैं। लड़कों के अंदर भी यही होता है, उनकी एज, उनकी हाइट जैसे-जैसे बढ़ना शुरू होती है, उनके और फीचर्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं, तो साथ में दाने निकल आते हैं। लेकिन दाने बॉदरिंग बहुत होते हैं क्योंकि आपको शुरू से स्पॉटलेस चेहरा देखने की आदत है। जी। अब जब उस चेहरे के ऊपर हम पहले ले लें, क्योंकि देखिए एक्ने सिर्फ चेहरे तक महदूद नहीं है। हम बात हुँ, करते हैं चेहरे की सिर्फ क्योंकि वो नज़र आता है, लेकिन आप देख लें तो अपर आपका पूरा चेस्ट, बैक हुँ, पूरी और अपर आर्म्स इन सब जगहों पे और कई लोगों को हिप्स के ऊपर भी एक्ने होती है। इसकी ये साइड्स हैं। तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि कहीं भी दानों का नज़र आने के ऊपर अच्छा हमारे यहाँ ये बहुत बात की जाती है बहुत आराम से कि नहीं कोई मसला नहीं है, बस ठीक हो जाएगा, ये तो इस एज की बात है। लेकिन ये इस एज में ज़रूर आता है मगर ये एज में कोई फ़ैशन नहीं आता, इस एज में ये बीमारी आती है। सो बीमारी के आने पर बेशक वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है क्योंकि इसकी 3 टाइप्स हैं। तो जिस तरह की भी उसकी टाइप्स हैं, उसके मुताबिक उसका इलाज लाज़मी है। अगर हम उसका इलाज उस वक़्त नहीं करते ये कह के कि नहीं ये तो सबको नॉर्मल है, नहीं ये तो मुझे भी हुई थी, ये तो खाला को भी हुई थी तो कोई बात नहीं और अगर हम इसका इलाज नहीं करेंगे तो इसकी हो जाती है कॉम्प्लिकेशंस। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? वो रह जाते हैं धब्बे, स्कार्स, जी। पिगमेंटेशन, वो फिर कभी नहीं जाते और उनको खत्म करने के लिए अगेन जो मेरी दूसरी साइड ऑफ द प्रैक्टिस है एस्थेटिक आपको उसमें ऐड होना पड़ेगा। वहाँ जाते हैं तो आपके प्रोसीजर्स आ जाते हैं जिसमें माइक्रोडर्माब्रेशन से लेकर, पीलिंग से लेकर, लेज़र से लेकर बहुत कुछ सारी चीज़ें माइक्रो नीडलिंग तक आ जाती है और जो काम शायद 2-4 दिनों में या कुछ एक लिमिटेड टाइम में 2-4 दिन तो नहीं, कुछ लिमिटेड टाइम फेज़ में होना चाहिए था, वो फैल के महीनों और सालों की शक्ल इख्तियार करता है, ना सिर्फ़ आपका टाइम लेता है, बल्कि उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट आपकी इन्वेस्टमेंट लेता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी टर्म्स। तो ये चीज़ आपको देखना चाहिए कि जो चीज़ महदूद ज़राए में हमें हासिल हो जाए, उसको खराब करके, बुरा करके कोई फ़ायदा नहीं। तो लिहाज़ा पहले इसकी जो जो जजमेंट हम करते हैं वो एज ग्रुप, उसकी इंटेंसिटी एंड सेवेरिटी कि वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है और उसके हिसाब से पेशेंट से सर्टेन क्वेश्चंस किए जाते हैं। जैसे अब मैं आपको एक बहुत छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे दूँ, पहले हम ये आज से 3 साल पहले ये सोचते भी नहीं थे। लेकिन अब मुझे तकरीबन टीनेजर्स लड़कियों को ये सवाल ज़रूर करना पड़ता है, चाहे वो 11 साल की क्यों ना हो, क्या आप मेकअप तो नहीं करती? हमें इस एज में लिपस्टिक लगाने का भी पता नहीं था, लेकिन ये ट्यूटोरियल्स देख के जब मेकअप बहुत ज़्यादा ये बच्चियाँ करने लगती हैं, तो अंदाज़ा ये हुआ कि मेकअप बहुत क्लॉगी होता है। एक तो अभी हम जो पहले बात कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि हार्मोन्स कैसे इसको अफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन हम एक तो इंटरनल फैक्टर्स हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। मैं मुँह ही नहीं धो रही, कई लोगों को मुँह धोने का नहीं जी, मैं तो पानी से धो लेती हूँ। नहीं, बड़े अजीब-अजीब लोगों के हैं, नहीं मैं तो सिर्फ़ एलोवेरा से मुँह धोती हूँ। जितने हम लोगों की प्रैक्टिस में आई एम श्योर मेरे साथ मेरे रिस्पेक्टेड और एस्टीम्ड कॉलीग्स जो इस शो को देख रहे हैं वो मुझसे डिसएग्री नहीं करेंगे कि बहुत अजीब-अजीब लोगों की हैबिट्स होती हैं। मैं तो सिर्फ़ बेसन से मुँह धो रही हूँ। जब आप क्लेंजिंग सही नहीं करेंगे, तो आप एक्सटर्नली भी स्किन को डैमेज कर रहे हैं। पोर्स क्लॉग हो रहे हैं, वो साफ नहीं हो रहे। आपकी स्किन ऑयली थी या कॉम्बिनेशन थी, ऑयल ज़्यादा बन रहा था और रिमूव नहीं हो रहा था। क्योंकि हमें देखिए ना इतने सारे फेस वॉशेज़ क्यों प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, उनकी कोई वजह है। हर कंपनी, हर फार्मास्यूटिकल यही कोशिश करती है मैं अच्छे से अच्छा कोई स्क्रब के साथ लाऊँ, मैं कोई क्लियर एजेंट लाऊँ, कोई टी ट्री डालूँ, मैं कुछ करूँ, वो कुछ करने की कोशिश इसीलिए कर रही होती है कि क्लेंजिंग इज़ द कोर। आप ये भी जानती हैं कि आजकल सफाई और क्लेंजिंग के ऊपर इतनी बात हो रही है, बार-बार हाथ धो, बार-बार ये कोविड की वजह से, तो आप देख लें सफाई की अहमियत हर बीमारी के अंदर बहुत ज़्यादा है। चाहे वो चेहरा है, चाहे वो आपके हाथ हैं। आप बॉडी नहीं धो रहे, अब नहाने का जी मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मैं तो 1 दिन में 1 दफ़ा भी नहीं नहा रही। हर मरीज़ की अलग-अलग कहानी है। भई जब आप नहाएँगे ही नहीं, तो ये बॉडी की एक्ने कैसे साफ़ होगी? इस पे दवाई कैसे लगेगी? इतना हमारी बॉडी स्वेट प्रोड्यूस करती है। आप 10 मिनट किचन में खड़े हो जाएँ या बाहर निकल जाएँ, आप देखें इसी से हट के हालत क्या होती है और मैं उसके बाद नहाने से मना कर दूँ और कोई नहाने को कहे तो मैं उसको उसके खिलाफ इतनी ज़्यादा बातें करना शुरू हो जाऊँ कि जी नहीं इन लोगों को तो बस ये टाइम नहीं है हमारे पास नहाने का। तो जब आप खुदा के बनाए हुए तरीकों से हटकर कोई नया तरीका बनाने की कोशिश करेंगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकते और बीमारी की शक्ल में तो ये चीज़ हमें और भी ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए कि अगर हम पहले 1 दफ़ा नहा रहे थे, तो अब हम 2 दफ़ा नहा लें ताकि हमारी बॉडी साफ़ हो जाए। क्योंकि सफाई, गंदगी, हमारी ये जितना भी सीबेशियस सिक्रीशंस आ रही हैं, ऊपर बैक्टीरिया आ रहा है, यही तो सबसे बड़ी वजह है एक्ने के बनने की।
अच्छा डॉक्टर, जैसे आपने बात भी करी कि एक्ने की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कुछ बहुत सिवियर होती हैं, कुछ माइल्ड होती हैं, तो मैं चाहती थी थोड़ा, अगर इसको आप थोड़ा डिटेल में बता सकें कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ने। जी, एक होती है माइल्ड, एक है मॉडरेट, एक है सिवियर। माइल्ड वो होती है आपके ना छोटे-छोटे जैसे पानी के छाले, ब्लिस्टर नुमा थोड़े से फेस के ऊपर देख लिए। अच्छा, सबसे बड़ा एक मसला ये आता है, ऐज कोई भी हो, जैसे ही दाने निकलते हैं हमें सबसे पहले होता है मैंने यूँ-यूँ निकालने। जी। जैसे ही पॉपुलर आप की उनको तरह। निकालने की मैं तो बस इसको ना पॉप आउट हर पेशेंट आके बड़े फ़ख्रिया बताता है, मैं तो पॉप आउट कर लेती हूँ। तो ये ना सारा अंदर से गंद निकल गया। आपने जब इन द मिडल ऑफ एन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इसको इंटरवीन किया और इसको तोड़ने की कोशिश की, वो निशान और वो स्कार बहुत मुश्किल से जाता है। तो प्लीज़ एक तो ये हैबिट अपनी डिस्करेज करें। ऑब्वियसली ये एक नेचुरल फीलिंग है, आपका दिल चाहता है आप ये हटा दें, मैं भी मानती हूँ, लेकिन इसकी फिर बहुत भारी प्राइस देनी पड़ती है। तो अगेन अब अगर आपको माइल्ड एक्ने है, आप फेस वॉश अच्छे से यूज़ करें। हम एक्ने वाले तमाम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं टॉवल यूज़ ना करके टिश्यू यूज़ करें ताकि हम बार-बार अपने आप को मज़ीद बैक्टीरिया ना दें टॉवल लगाने से या कोई अगर हमारा टॉवल यूज़ कर रहा है तो डेफिनिटली खराब होगा। तो टिश्यू तो वन टाइम यूज़ है, आपने किया, फेंक दिया, वो ईज़ी रहता है। पहली चीज़। दूसरी बात, आप इस तरह के फेस वॉशेज़ यूज़ करके फेस वॉश करें। फिर आपके जेल बेस्ड और स्प्रे बेस्ड सनब्लॉक आते हैं, आप उन्हें लगाएँ। अगर तो आप ऐसे बहुत ज़्यादा ऑयली फेस रखते हैं या आप कराची जैसे सेटअप में रहते हैं जहाँ बहुत ह्यूमिडिटी है, लेकिन बाकी पार्ट ऑफ हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता कि हमें बहुत ज़्यादा इतनी ह्यूमिडिटी का वो है, तो वहाँ पे हम क्रीम बेस्ड सनब्लॉक भी लगा सकते हैं आफ्टर एवरी फेस वॉश। फेस वॉश से फेस 2 से 3 दफ़ा वॉश करना चाहिए, बाकी हम 4-5 दफ़ा तो वैसे ही पानी से मुँह धो रहे होते हैं, तो दैट इज़ फाइन, आपने धो लिया। लेकिन 3 दफ़ा, 2 दफ़ा फेस वॉश कर लेने से आप तमाम रेज़िडुअल अपनी जो सेबेशियस सिक्रीशंस चेहरे पे आ जाती हैं और बाहर से कोई पॉल्यूशन आ गया या किचन में कुकिंग के वक़्त काफ़ी ख़वातीन को ये इश्यूज़ आते हैं, तो वो फिर उससे साफ़ हो जाएगा। उसके बाद फिर आपके पास मॉइस्चराइज़र्स हैं, आप वो लगा दें और अपनी जो जेल्स आती हैं, जो हमारे पास होती हैं, कई तरह की टॉपिकल प्रिपरेशंस आती हैं, किसमें बेंज़ाइल पेरोक्साइड होता है, किसमें क्लिंडामाइसिन होता है, वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है। आप ओवर द काउंटर जाके ऐसे ही फार्मेसी वाले भाई से, भाई आजकल क्या फैशन में एक्ने की ट्यूब है, ये लेने से एक्ने ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए एक्ने को पहले तो डायग्नोस करना तो शायद किसी के लिए मुश्किल नहीं है। उसकी सेवेरिटी के मुताबिक उसके ट्रीटमेंट को जज करने का सिर्फ एक्सपीरियंस एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास होता है, जो इस चीज़ को ठीक कर सके। और इसमें एक और बहुत बड़ा मिथ है जो कि मैं सिर्फ़ ऊपर से ये चीज़ें लगा लूँगी, मैं कोई गोली नहीं खाऊँगी। ये हर पेशेंट आके बैठने से भी पहले ये फ़रमाइश डॉक्टर से ज़रूर करता है एंड आई एम श्योर मेरे एस्टीम्ड कोलीग जो हैं, वो इस बारे में मुझसे डिसएग्री नहीं करेंगे कि हर कोई आके कहता है मैं टैबलेट नहीं खाऊँगा। अब मैं बार-बार इस पूरी हमारी कन्वर्सेशन के अंदर एक ही बात पे स्ट्रेस कर रही हूँ कि ये एक हार्मोनल इश्यू है अलोंग विथ बाहर के फैक्टर्स के साथ। तो आप मुझे ये बता दें कि कैसे मुमकिन है कि मैं हार्मोन्स को ठीक करना चाहूँ और मैं ऊपर से उसको डिक्टेट करा दूँ और अंदर से कोई टैबलेट ना लेना चाहूँ? कोई इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे ये दाने ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं, इन्फ्लेम्ड हो रहे हैं, ये मॉडरेट और सेवेयर की तरफ जा रहे हैं और मैं फिर उनको टैबलेट ना दूँ। तो जब टैबलेट नहीं खाएँगे तो ये खत्म नहीं होगा। दूसरा, ये एलर्जी नहीं है जो 2 दिन में खत्म हो जाए, तो जो भी बंदा ट्रीटमेंट के लिए आता है वो अपने ज़हन में ये बात साफ रखे, क्लियर रखे कि ये ट्रीटमेंट लंबा है, तो गोलियाँ थोड़ी देर ज़्यादा खानी पड़ेंगी क्योंकि ये इस बीमारी की रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर की ख़्वाहिश नहीं है। लोगों का ये मानना होता है डॉक्टर जी गोलियों पे गोलियाँ दिए जा रहे हैं क्योंकि आपकी एक्ने जैसे ही आप गोलियाँ बंद करेंगे वो वापस आ जाएगी। तो उसको एक लंबे अरसे तक कंटिन्यू करके आपके हार्मोनल टेस्ट करके बहुत सारी और फैक्टर्स देख के आपका नेचर ऑफ वर्क देख के, अब मिसाल के तौर पे कई पेशेंट्स हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, हेवी ऑयल की इंडस्ट्री में काम करते, सारा वक़्त मास्क, केमिकल, फ्यूम्स आ रहे हैं, तो क्या मैं उसको एक्सपेक्ट करूँगी कि उसकी एक्ने 4 दिन में ठीक हो जाएगी? नहीं, उसको उसके फैक्टर्स में, उसकी सिचुएशन में रहते हुए ठीक होने की ज़रूरत है। तो इस लिहाज से हर एक के लिए एक अलग टाइम पीरियड, हाउसवाइफ के लिए एक अलग है, एक 2 बच्चों की माँ का एक अलग सेटअप है, टीनेजर का एक अलग इंटेंसिटी है। तो हर पेशेंट डिफरेंट है, हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते और ना ही ये एक प्रिस्क्रिप्शन लेकर क्लास की 16-17 लड़कियाँ उसको फ़ोटोस्टेट करके सब खाना और लगाना शुरू कर देती हैं। ये एक अलग कल्चर है हमारे यहाँ। तो जिस तरह हम अपने लिए लापरवाही या शॉर्टकट्स ढूँढेंगे ना, ये बीमारी उतने दिन हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। दैट इज़ द की। अच्छा मैडम, मैं चाह रही थी कि ट्रीटमेंट्स के हवाले से आप थोड़ा-सा अगर हुँ, गाइड कर सकें हुँ। लोगों को कि कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं फॉर एक्ने?
देखिए, हम जो अब मैं पहले अगर मेडिसिन की तरफ से बात करती हूँ और फिर हम एस्थेटिक वे से दोनों वे से बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया फेस वॉश है, अच्छा ठीक है आप यूज़ कर लें, चूज़ कर लें, नहीं समझ सकते तो ऑब्वियसली डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा। इसी तरह सनब्लॉक भी ये लोग बहुत ज़्यादा हेवी क्रीम बेस्ड सनब्लॉक अगर कराची में लगाना शुरू कर दें इस मौसम में तो वो तो 1 सेकंड मुँह पे नहीं रहेगा। तो हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हम लें क्या? ऐसे मॉइस्चराइज़र्स भी जेल बेस्ड, फ्लूइड बेस्ड होते हैं जो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। फिर आप डॉक्टर की दी हुई टैबलेट्स और लगाने के जेल्स उस पे लगाते रहें, तो वो तो माइल्ड के लिए ठीक है। मॉडरेट में जब आप जाते हैं, आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत है। कोई खातून है, लड़की है, तो हम उसके मंथली साइकिल से लेकर उसकी प्रेगनेंसी की हिस्ट्रीज, मैरिड है, अनमैरिड है, उसके टेस्ट होते हैं, हार्मोनल टेस्ट, अल्ट्रासाउंड के साथ सारे वो हम चेक करते हैं। फिर उसके बाद ये देखते हैं, अच्छा फिर हमारे यहाँ एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ चिकन है, बहुत ज़्यादा चिकन खाई जा रही है, वो भी एक हार्मोन्स का बहुत बड़ा ज़रिया है। जो डाइट करने जाता है वो ये खाने लगता है, वैसे भी लोग बहुत खा रहे हैं। हमें अपनी डाइट को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। हमें डेयरी प्रोडक्ट्स उसमें ऐड करने चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लेने चाहिए। कहने को ये बहुत छोटी बातें हैं और बड़ी रिपीटेडली कही जाती हैं। लोग बड़े एनॉय होते हैं, भई डॉक्टर तो यही बातें करते हैं। लेकिन आप ये देख लें कि लाइफ सब चीज़ों को साथ लेके चलने का बैलेंस है और ऐसे उसमें मुमकिन नहीं है कि मैं एक बात कहूँ सिर्फ़ दवाइयाँ खाएँ और आप ठीक हो जाएँगे, ये मुमकिन नहीं है। फिर आप अपने अगर हार्मोनल अपसेट हो ही चुका है, तो उसके लिए भी हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट ये सब को रेफर करते हैं पेशेंट, वो साथ इसमें मिक्स होते हैं, साथ हमारे साथ पैरेलल पेशेंट को ठीक करते हैं, यूँ फिर हम काम करते हैं। अच्छा, फिर इसके साथ हम टैबलेट्स में क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स होती हैं, अगर हम समझते हैं कि पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत है, सर्टेन ब्रांड्स हैं वो देते हैं। नहीं तो उसके अलावा हमें लगता है कि अगर पेशेंट वाक़ई बहुत स्पीडीली बहुत एक्ने बना रहा है, बहुत बॉडी पर भी है, फेस पे भी बहुत ज़्यादा है और स्कार्स भी छूट रहे हैं, हाँ, हम रेटिनॉइड्स को भी ऐड करते हैं क्योंकि रेटिनॉइड्स की जो ओरल रेटिनॉइड्स की इंडिकेशन है, वो आ जाती है मॉडरेट और मॉडरेट टू सिवियर और नोडुलोसिस्टिक के अंदर। वहाँ हम देखते हैं कि वो पेशेंट प्रेगनेंसी के उस ग्रुप में है, क्या ब्रेस्ट फीडिंग तो नहीं है, क्या है, ये सर्टेन क्वेश्चंस हैं जो हम पेशेंट को करते हैं। फिर सर्टेन टेस्ट हैं, उनके एलएफटीज टेस्ट करते हैं, उनके लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, दिस इज बताने का मकसद ये कि देयर इज अ सिस्टम वी फॉलो। ऐसे ही दवाइयों के एक मजमे में से कुछ भी उठा के रैंडम जैसे वो हम वो खेलते थे क्या वो गेम आती थी जिसके ऊपर हम ऐसे तीर मारा करते थे वो जो डार्ट वो खेलते थे तो वो चीज नहीं है कि ये तुक्का मारा इधर कंची गिर गई उधर गिर गई काम हो गया ऐसा नहीं है हम पेशेंट की जजमेंट उसकी फेस उसके 4-6 क्वेश्चंस के बाद ही कर लेते हैं कि इसको किस किस्म का ट्रीटमेंट देना है और उसको प्रॉपर काउंसलिंग लिखते भी हम साथ बताते जा रहे होते हैं कि तुमने ये करना है पेशेंट उसके अंदर जाते ही फिर उनके साइड इफेक्ट्स पढ़ने के बाद एक नई सी राय कायम कर लेता है हर दवाई के साइड इफेक्ट्स हैं और डॉक्टर इसीलिए वो टेस्ट कर रहा है और देख रहा है कि आपको मिनिमम साइड इफेक्ट्स हो अगर हो रहे हैं तो और अगर होते हैं तो आप डॉक्टर से डिस्कस करते हैं जैसे मुझसे अक्सर करते हैं जी मुझे इससे ये हो रहा है तो हमारे पास उसके 10 ऑल्टरनेट मौजूद हैं इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि ये चीज ठीक नहीं होने वाली तो ये पहले आप देखिए फिर इसके बाद टॉपिकल जो प्रिपरेशन हम देते हैं उसमें बेंजाइल पेरोक्साइड हो गई आपके पास क्लिंडामाइसिन हो गई टॉपिकल रेटिनॉइड्स हो गए तो वो सारी भी चेंज कर करके देनी होती है आप एक ही ट्यूब या एक ही जेल को बहुत अरसे तक यूज करेंगे तो अगेन स्किन उससे काफी इम्यून हो चुकी होती है वो बहुत ज्यादा उससे रेजिस्टेंस दिखाती है वो ठीक नहीं होती और हमें लगता है कि भाई ये जनवरी में तो काम कर रही थी अब मार्च में तो ये बिल्कुल काम ही नहीं कर रही वो इसलिए नहीं कर रही कि स्किन उससे अब यूज टू हो चुकी है तो हमें कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन हमें कम से कम वंस इन अ मंथ डॉक्टर के पास जाना चाहिए जहाँ हमारी मेडिसिन एंड हो रही हो हम नई कंडीशन उन्हें दिखाएं और वो नई कंडीशन के मुताबिक ओरल और टॉपिकल मेडिकेशंस आपको दोबारा प्रिस्क्राइब करें ऐसा करने से ये एक ऑनगोइंग प्रोसीजर है जो कई महीनों चलने के बाद जब डॉक्टर को महसूस होता है कि अब पेशेंट की एक्नी काफी कम हो गई है तो वो खुद ही पेशेंट की दवाइयों को कम करता है किसी भी डॉक्टर को उसे इतनी इतनी मेडिसिन देने का कोई शौक नहीं है लेकिन एक्ने की कंडीशन एक्ने की टेंडेंसी अगर बहुत ज्यादा होगी तो मुझे उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मैं क्या मुझ समेत जितने डॉक्टर्स हैं वो ठीक यही है। करते हैं क्योंकि और कोई तरीका एक्ने को कंट्रोल करने का है नहीं ठीक है। अच्छा मैडम जिस तरह आपने स्टार्ट में फेस वॉश के यूज़ की बात करी तो हम्म, फेस वॉश में भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिस तरह से जेल जी बेस्ड हो गया, फोम बेस्ड होते हैं। तो एक्ने प्रोन स्किन के लिए कौन से फेस वॉश सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है? इसके साथ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन से इंग्रीडिएंट्स हैं जो कि वन शुड लुक फॉर व्हाइल चूजिंग एन एंटी एक्ने फेस वॉश? देखिए इस तरह के सबसे इम्पोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट किसी भी ऑयली फेस के लिए या एक्नी के लिए हम देखते हैं वो सैलिसाइलिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है
ओके। मेरे साथ जितने भी लोग इसे प्रिस्क्राइब करते हैं वो ये जानते हैं कि सैलिसाइलिक का जो एसिड का रोल है वो ऑयल जो हमारी स्किन स्किन बना रही होती है उसकी क्लेanलीनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी बैक्टीरियल उसके रोल हैं और प्लस वो एक्ने के अंदर ऐसा रोल प्ले करती है कि वो स्किन को साफ करती है। सैलिसाइलिक कई लोग ज्यादातर जो हम लोग प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं डॉक्टर्स इसको, वो जेल बेस्ड होता है। लेकिन कई जो पेशेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि हमें जेल बेस बिल्कुल भी नहीं, बहुत मुंह ग्रीसी कर रहा है, हमें नहीं समझ आ रही, क्योंकि देखिए ये एक ही फेस वॉश सबके लिए नहीं होता। सर्टेन लोगों की प्रेफरेंस होती है फोम, उन्हें बिल्कुल जेल पसंद नहीं होता। लेकिन फोम के अंदर भी जितने भी हमारे ये मौजूद हैं फेस वॉशेस, उनके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। सम आर विथ स्क्रब्स ताकि वो एक्सफोलिएट भी करें, सम आर क्लियर आपको दिखाई देंगे, सम आर लाइक जेल, सम आर लाइक फोम। तो मुख्तलिफ वेराइटीज होती हैं और सबके अंदर बेसिकली ग्रीन टी, सैलिसाइलिक, इस तरह के मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो दिए जाते ठीक है। हैं। काफ़ी कॉमन कंसर्न होता है लोगों का कि एक ऐसी स्किन जिस पे एक्ने मौजूद है, तो क्या ऐसे लोग मेकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं? इस बारे में आप क्या एडवाइस करती हैं अपने पेशेंट्स को, और इज़ इट सेफ फॉर एक्ने पेशेंट्स टू यूज़ मेकअप ऑन द स्किन? देखिए मेकअप करने का के कुछ आदाब होते हैं, हुँ, हमेशा मैं उस बारे में बात करती हूँ। मेकअप लगाने के और उतारने के दोनों आदाब हैं। जी। ट्यूटोरियल्स बेतहाशा हैं। हुँ, आजकल हर बंदा जो चाहता है कोई भी मेकअप लेने के लिए रिकमेंडेशन वो खोलता है, किसी की भी देख ली ऐप, उसने ये लगा लिया, वो लगा लिया। उसमें कोई स्किन की एक रैंडम सी गुफ्तगू होती है, वो कोई हज़ारों लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए खातून बैठती हैं जी। और बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। इवन आप और मैं भी देखें तो उसका से नज़र नहीं हटती, वो इतना अच्छा फिनिश करके हटती हैं और वाक़ई वो एक्सपर्ट हैं। मैं हम उन्हें ना इस चीज़ में कुछ कह रहे हैं, ना इस बारे में, बल्कि मैं तो एप्रिशिएट करती हूँ कि ये एक टैलेंट है। बट अगेन फॉर किसके लिए है, उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उनकी ऑडियंस हर कोई, ठीक है वो अच्छा। टीनेजर्स लड़कियां बहुत कैच करती हैं, बहुत ज्यादा खुश होती हैं कि जी उन्हें मेकअप करने को मिल रहा है, अम्मी का मेकअप है। पहले जमाने में तो हम अम्मी के मेकअप यूज करते थे, अब के जमाने में तो हर कोई अपना मेकअप खुद ऑर्डर करता है और अपने हिसाब से करता है। तो जो खवातीन शो सुन रही हैं और देख रही हैं, उन्हें पता है कि उनके घर में इतनी इतनी फाइल्स मेकअप के आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं जो उनकी बच्चियों की फरमाइश होती है। हुँ, क्वेश्चन ये है कि बिफोर बाइंग एनी मेकअप, हुँ, इतनी हमारे पास पेशेंट्स आती है जिनकी शादी होने वाली होती है, तो वो यही कहती हैं कि भाई मेकअप हजारों का काम है, हजारों लाखों रुपए की एक कमोडिटी बन चुकी है और डेफ़िनिटली। उसे खरीदने से पहले हम कोई गलती करने की पोजीशन में नहीं है। हुँ, तो आप हमारी हुँ, स्किन टाइप देखने के बाद हमें एडवाइस करें कि हम मेकअप ले क्या। हुँ, फॉर एन ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, फाउंडेशंस बिल्कुल भी हमारे वेदर के सेटअप में कुछ ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि हुँ, फाउंडेशन लगने के बाद वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है और जैसे वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है वो फिर उसके बाद तो वो उसका कोई लुक ही नहीं आता। तो लिहाजा अगर आप कभी किसी प्रोफेशनल मेकअप देखें कि आपके घर कोई ओकेजन हो गया, आपकी खुद की शादी हो गई, आपके इर्द गिर्द में किसी की शादी है और आपने 1-2 दिन प्रोफेशनल मेकअप कर लिया और वहाँ आपने ये देखा कि उसने आपको जो लगाया है, वो आपका रोज़ का मेकअप नहीं है। उसे हुँ, वो मेकअप होल्ड करना है फॉर अ प्रोफेशनल लुक, तो वो कई घंटे वैसे ही रहेगा। तो उसके लिए उसको कई चीज़ें ऐड करनी है जो थिक है। जब तक आप थिक मेकअप नहीं लगाएँगे, मेकअप होल्ड नहीं कर सकता। यहाँ पर ये बात है कि जो हम डेली बेसिस, जैसे आप और मैं अभी एक शो करने बैठे हैं, हम ऑफ़िस जाते हैं, क्लिनिक जाते हैं, ऑब्वियसली इतना हेवी मेकअप हम वेयर नहीं करते। तो हुँ, एक ऐसे बंदे को जिसे कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन है, उसे फाउंडेशन अवॉइड करते हुए हमेशा पाउडर बेस्ड मेकअप की तरफ जाना चाहिए। हुँ, और इस तरह के मेकअप को मिनरल मेकअप कहा जाता है। ओके। मिनरल मेकअप पाउडर बेस्ड मेकअप होता है और ये एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी, नहीं भी क्या, अब तो उसको भी कोई 10-12 साल 15 साल से तो देख ही रहे हैं हम भी। तो वो उस मेकअप के अंदर ये होता है कि उसके अंदर छोटे-छोटे क्रिस्टल्स होते हैं जो स्किन हुँ, के पोर्स को क्लॉग नहीं करते। तो हमारा मेन काम तो यही है ना कि जब हम मेकअप करते हैं फाउंडेशन में, उसको इतना ऑयल होता है कि वो हमारी स्किन को जैसे ही क्लॉग करता है, या टीवी स्टिक्स जो हमारे यहाँ बहुत रिवाज है, तमाम जो टीवी पे लोग आते हैं टीवी स्टिक के बगैर तो वो बैठ ही नहीं सकते क्योंकि उनका मेकअप फौरन हटना शुरू हो जाता है। सेलिब्रिटीज हैं हमारी, न्यूज़ कास्टर्स हैं एंड सो मेनी पीपल। तो वो जब सब लोग आते हैं तो आप उनके नोट करें, इतने मोटे-मोटे दाने होते हैं चेहरे के ऊपर, जो नोडुलर सिस्टिक एक्ने है, क्योंकि वो सारा-सारा दिन मेकअप लगा के घूमते हैं। और अब जो बंदा 16 से 18 घंटे मेकअप में रहेगा, तो वो मेकअप क्लीन भी कर ले तो उसके बाद उसके पास ज़्यादा टाइम है नहीं और फिर ऐसे लोगों पर मेकअप जो है सॉरी ट्रीटमेंट भी असर करने में देर लगती है। तो फॉर अ कॉमन पर्सन लाइक अस, हम लोगों को ये करना चाहिए कि मिनरल पाउडर मेकअप को कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ आप लगाएं, ठीक है, अपने सनब्लॉक के ऊपर। जी। और उसको लगाने के बाद कंसीलर से आप अपने दाग धब्बे, एक्ने स्कार्स, पिगमेंटेशन कोई भी है वो आप छुपा लें
और फिर आप हुँ, कॉम्पैक्ट बेस लगा के और उसके ऊपर अच्छे तरीके से फिनिश कर सकते हैं। उसके भी बहुत ट्यूटोरियल्स आते हैं, आप देख लें, विदाउट फाउंडेशन है। हाँ, हम जब बाहर से कुछ मेकअप देखते हैं तो कई कंपनीज़ ये क्लेम करती हैं कि हमारा मेकअप वाटर बेस्ड है। बहुत ये निकला कि जी वाटर बेस्ड फाउंडेशन है, वाटर, लेकिन अभी तक उसको लगाने के बाद किसी में कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने में कि जी उसकी एक्ने नहीं हुई, कुछ ऐसा देखने में अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए। तो सो तो अभी तक की जितनी रिसर्च हुई है और जितना देखा गया है कि जो एक्ने को डिस्टर्ब ना करे, वो यही है कि हम मिनरल पाउडर मेकअप लगाएँ और फिर लगाने के बाद जब हमारा काम खत्म हो गया है तो हम इसे रिमूव करें। अच्छा, जी। कई लोग यही करते हैं, गए फेस वॉश लिया, मुँह साफ किया, वही हो गया। ऐसा नहीं है। कॉटन पैड लेने के बाद आपके कितने किस्म के स्प्रे बेस्ड, वाटर बेस्ड, टोनर बेस्ड, प्रिस्क्रिप्शन वाइज़ हम मैं कितने प्रिस्क्राइब करती हूँ, वो उस हुँ, किस्म के आपके पास आते हैं क्लेंजर्स, वो आप लेके मुँह को साफ करें, कॉटन पैड से क्लीन करें और उसके हुँ, बाद जब आप ये कर लें, तो उसके आधे घंटे बाद आप मुँह धो लें और मुँह धोने के बाद फेस वॉश करके प्रॉपर और फिर मॉइस्चराइज़ करें अपने किसी जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र से और या फ्लूइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र से। हेवी क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र आप नहीं लगाएँगे, ताकि ओके। उससे आपका स्किन दोबारा खराब हो और आपको प्रॉब्लम हो। तो मेकअप एक बहुत बड़ा पॉज़िटिव फैक्टर है और उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। हुँ, हुँ। अच्छा मैडम, सनब्लॉक के यूज़ के हवाले से आपके क्या व्यूज़ हैं? इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर एक्ने पेशेंट्स टू वियर अ सनब्लॉक? It is definitely important for everyone, even for a child, even for adult, even for a हुँ, patient who even for a person who is above like in an old age group। क्योंकि देखिए सनलाइट के बारे में यही बात है कि मैं तो धूप में जा ही नहीं रही, अब हम कहें लॉकडाउन में तो हम में से कोई बाहर नहीं किया, हमें क्या जरूरत है जी सनब्लॉक लगाने की। लेकिन अगर आप ये देख लें कि हमारे जो भी सनलाइट है, हमारे टेरेसेस हैं, हमारी खिड़कियां हैं, जो जैसे अब आपको मेरे पीछे भी शेड नजर आ रहा है, तो जितनी भी ये यूवीए यूवीबी रेडिएशंस आ रही हैं, वो सारी की सारी हमारी फेस पर, हमारे बाल पर, हमारी बॉडी पे सब पे इफेक्ट करती है, जो उसे करना है। हुँ, हुँ, अच्छा, अब उसके लिए ही प्रोटेक्शन के लिए सनब्लॉक है। हाँ, बाहर निकल गए तो प्रोटेक्शन की नीड ऑब्वियसली 10 टाइम्स हायर है। लेकिन घर के अंदर अब मैं मुझे किचन में जाना है, तो वहाँ मैं इतनी हीट देख रही हूँ। ज़ाहिर-सी बात है, कोई ना कोई किसी भी काम से अपने टेरेस में, अपने गार्डन में या अपनी गैलरी में कहीं न कोई तो जा ही रहा होता है इसके बावजूद रहते हुए। और इतने रोशनी वाले घर होते हैं हमारे जिनसे इतनी रोशनी आ रही होती है। तो उससे प्रोटेक्शन जो यूवीए, यूवीबी से हमें करनी होती है, उसके लिए सनब्लॉक बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसकी अहमियत से किसी को डिनाई नहीं किया जा सकता। हम नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल चीज़ अनइम्पोर्टेंट है। हाँ, इस पर स्ट्रेस पिछले कोई 1 डेकेड में बहुत ज़्यादा दिया गया, क्योंकि जब स्किन कैंसर्स बहुत बढ़ने लगे, स्किन पे बहुत किस्म के और प्रॉब्लम्स आने लगे, तो ये रिसर्च ने साबित किया कि सन ब्लॉक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी ओज़ोन की जो लेयर थी, जो ऊपर एटमॉस्फेयर में थी ऊपर, वो हमारी पॉल्यूशन की वज़ह से बहुत डैमेज हो गई थी। तो उसके बाद इसकी अहमियत और बढ़ गई। हर एज ग्रुप के लिए अलग-अलग किस्म के और हर स्किन टाइप के लिए अलग-अलग किस्म का सनब्लॉक मौजूद है। स्प्रे भी है पानी की तरह, आप करें वो गायब हो जाता है, नज़र नहीं आता। जेल बेस्ड है, अलग है। क्रीम बेस्ड है, अलग है। मेकअप की शक्ल में भी आता है जो हल्का-सा आपको टिंट देगा। फ्लूइड आता है जिसमें टिंट होता है कि अगर जो ख़वातीन फाउंडेशन लगाने की शौकीन होती हैं और लेकिन नहीं लगा सक रही, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको मेंशन किया, तो उसमें हल्का-सा सनब्लॉक में ही कलर हो जाता है। वो आपने लगाया था, आपके फेस के ऊपर एक हल्का-सा कलर सा आ गया और उसके फ़ौरन बाद आपने हल्का मेकअप कर लिया, हुँ, तो वो एक डे की आपकी बड़ी अच्छी, क्योंकि डे लाइट में तो वैसे एक्सेप्ट्स कोई जो शोबिज़ से ना हो, वो बहुत हेवी मेकअप वियर नहीं कर रहा होता। इट शुड बी अ लाइट नोट वाला हम मेकअप कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़, हर प्रोडक्ट और हर ऑप्शन अवेलेबल है। हम सिर्फ़ हुँ, उसे ढूँढना नहीं चाहते, या हमें पता नहीं होता, और हमें हुँ, पता नहीं है तो देखिए ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स मोस्टली नहीं होते, ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड होते हैं। तो आपको हुँ। यही एडवाइस किया जाएगा कि आप अपने कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ, उनसे जाके एडवाइस कर लें, उनसे डिस्कस कर लें अपनी स्किन टाइप, वो आपको खुद ही उसके हिसाब से कोई ना कोई एडवाइस कर दें। ठीक है। तो मैडम, व्हाट आर द अदर लाइफस्टाइल चेंजेस दैट यू वुड रिकमेंड टू आवर व्यूअर्स टू कीप एक्ने इन कंट्रोल? देखिए, अब हम जितना भी अभी बात करते रहे, वो अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन के बारे में बहुत ज़्यादा हो गई और आदमियों के बारे में या टीनेज लड़कों के बारे में हमने नहीं किया। तो देखिए जो हमारे मेल मेंबर्स हैं सोसाइटी के, वो कॉन्स्टेंटली शेव करते हैं और शेव जी। करने की वजह से या उनकी दाढ़ी होती है, 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास। हुँ, तो हुँ, जो हुँ। शेव करते हैं उनके लिए बार-बार इन एक्ने के ऊपर से शेव करना एक बहुत बड़ा मसला होता है। इस हुँ, लिहाज़ा उनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए बहुत जल्द। और उन्हें दिखाना रहता चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों की जो शेविंग क्रीम है,
वो मेंथॉल वाली और बहुत ज़्यादा परफ्यूम वाली ना हो, और जो बिल्कुल जेंटल और सेंसिटिव स्किन की शेविंग क्रीम्स आती हैं वो यूज़ की जाएँ। आफ्टर शेव लोशंस बिल्कुल ना इस्तेमाल किए जाएँ। अगेन टॉवल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मेन की स्किन ऑलरेडी थोड़ी-सी ऑयली होती है। तो ऐसे Hmm. तमाम लोगों को अपने फेस वॉशेस, अपने मॉइस्चराइज़र्स, अपने सन ब्लॉक सब फ्लूइड बेस्ड और लिक्विड बेस्ड रखने चाहिए, ताकि वो लगाएँ तो उनमें मज़ीद उनको कोई तकलीफ ना आए, और Hmm. मतलब उनको उलझन ना हो, क्योंकि लोगों को यही होता है कि जी ये तो बहुत ऑयली लग रहा है, ये तो लड़कियों के काम है, हम क्यों लगाएँ? तो वो तो जब महसूस होगा, नज़र आएगा तो बुरा लगेगा ना, लेकिन अगर कोई चीज़ फ्लूइड है, तो वो तो नज़र ही नहीं आ रही। तो आपने मुँह धोने के बाद उसकी लगा ली। देखिए, मर्द है या औरत, सबको अपनी स्किन की केयर करने की ज़रूरत है, और ये एक मिथ बहुत गलत है कि ये तो लड़कियों के काम है, आदमियों के नहीं है। ये सबके काम है, जो इंसान एक स्किन के साथ इस दुनिया में रह रहा है। हाँ, उसके ऑप्शंस वेरी कर सकते हैं, लेकिन ख़्याल सबका फ़र्ज़ है कि वो रखें, और अच्छा रखेंगे तो ही अच्छी चीज़ नज़र आएगी। और जहाँ तक जिन लोगों की बियर्ड है, अगेन वो उदाहरण उसके अंदर ही रहते हैं, तो फिर हम उस तरह के उनको लोशंस देते हैं कि वो अंदर लगाएँ, उसका ख़्याल करें। और ये है कि उसको अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाता है, तो फिर उसके बाद हम उस तरीके से उनके लिए ट्रीटमेंट भी कर रहे होते हैं, लेकिन बस उसको पिकिंग ना करें, उसको Hmm. उलझे ना। और ऐसे तमाम लोग अपने बियर्ड में, कई लोग ऑयल लगाते हैं, तो हम ऐसे लोगों को ये भी मना करते हैं कि प्लीज़ मज़ीद उसके ऊपर कोई ऑयल ऑयल ग्रीसी या यहाँ पे हिना लगाना या डाई लगाना, हम उनको बिल्कुल मना करते हैं। स्पेसिफिकली साथ में जब हम फेस को ठीक कर रहे हैं एक्नी के लिए, तो हम हेयर ऑयल भी मना कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अक्सर लोग लगा के छोड़ देते हैं। कोई 1 दिन, कोई 2 दिन, कोई 3 दिन, बहुत कुछ अजीब-अजीब सुनने को क्लिनिक में मिल रहा होता है। तो लिहाज़ा ये चीज़ ज़रूरी है कि हम वो इन सब चीज़ों का भी ख़्याल रखें, अपना सर रोज़ धोएँ, तेल कम Hmm. से कम लगाएँ, लगाना है तो एंडिंग्स पे लगाएँ, इधर ना लगाएँ, और थोड़ा केयरफुल रहने की कोशिश करें। दूसरा ये है, मैंने आपको डाइट के बारे में भी बीच में बताया कि भई लोग बहुत ज़्यादा एक ही डाइट की तरफ इंक्लाइन करते हैं, जो चिकन के अंदर, चूँकि उनके फीट थोड़े से आजकल कंट्रोवर्शियल हो गए, तो उसकी वज़ह Hmm. से ज़्यादा चिकन खाने से बहुत ज़्यादा हिर्सुटिज़म, नोडुलर सिस्टिक एक्ने, और इसके अलावा पिगमेंटेशन, मेलाज़्मा के भी केसेस बहुत बढ़ना शुरू हो गए। तो इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है कि हम ये एक बैलेंस डाइट की तरफ जाएँ। मेकअप एक बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हम मेडिसिन कौन-सी ले रहे हैं, कई लोग हमारे यहाँ डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी की वज़ह से, और बाकी और वेरियस Hmm. मेंटल डिसऑर्डर्स की और स्ट्रेसेस की वज़ह से जो है वो मेडिसिन्स की तरफ होते हैं, जो साइकियाट्रिस्ट प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो लिहाज़ा ऐसे तमाम पेशेंट्स से डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि वो पहले हिस्ट्री ले, पता करे, Hmm. पूछे कि क्या है, किस तरह, और अगर उनको ऐसा कुछ लगता है, तो वो उन डॉक्टर्स के साथ भी कंसल्ट करके, क्योंकि कई मेडिसिन्स भी ऐसी हैं जो एक्ने को क्रिएट करती हैं और हमें पता Hmm. भी नहीं होता, तो हमें वो भी देखना चाहिए। सर्टेन स्ट्रेसेज़ हैं लाइफ़ में, वो भी क्रिएट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमें जिन्हें देखना चाहिए। अच्छा, फिर एक बहुत ज़्यादा एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि जी मैं बहुत ज़्यादा ऑयल खाती हूँ, कल मैंने 2 पकोड़े खा लिए तो 4 दाने निकल गए, परसों 6 खाए थे तो 3 दाने निकल आए। तो देखिए, खाना का जो एक जो पूरा एक टॉपिक है इस एक्ने के साथ, उसमें कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं 2 किस्म के। Hmm. एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जी खाने से एज़ सच इसका कोई ताल्लुक नहीं है एक्ने के इरप्शन का। लेकिन मेरा ये जो ऑब्जर्वेशन ओवर द इयर्स रही इतने देखते हुए, तो किसी भी चीज़ का बैलेंस खो देना, यानी कि अब अगर कई लोग हैं वो रोज़ चिकन खा रहे हैं, कई Hmm. लोग हैं जो बहुत चॉकलेट्स खा रहे हैं। अब जी. चॉकलेट खाना एक छोटा-सा साइज़ होता है। हमारे यहाँ Hmm. लोग इतना बड़ा बार खा रहे हैं, तो आप मुझे बताएँ वो बॉडी में जाके कुछ तो कर रहा है ना, वो और भी 10 चीज़ें कर रहा होगा, लेकिन चूँकि ये विज़ुअल है, आपकी आँख कैच कर रहा है, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये है, फिर वो एक सर्टेन ऐज है। अब आप मुझे किसी 50 इयर्स के आदमी को इतनी बार चॉकलेट खाने की नहीं देखेंगे, लेकिन आप 12-13 साल के बच्चे को ज़रूर इतनी बार चॉकलेट की खाता देखेंगे। तो एक सर्टेन ऐज ग्रुप में सर्टेन ट्रेंड्स होते हैं, जो हम Hmm. फॉलो करते हैं, और वो फिर हम बहुत ज़्यादा अगर करने लगे, बहुत जंक फूड खाने लगे, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर आ जाएँ, घर वाले बैलेंस ना कर सकें कि डाइट लेनी क्या है, जिसमें पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि बच्चे के आगे वो हर चीज़ पे जब मान जाते हैं, तो वो अपने ट्रैक से जब शिफ्ट करता है, तो उसके बॉडी पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर आता है। या एलर्जीज़ डेवलप कर लेता है वो, या फिर वो उसके अलावा हेयर फॉल डेवलप करता है बिकॉज़ वो खा ही सही-सही नहीं रहा, और इसके अलावा फिर वो इस तरह के दाने और मुख्तलिफ और प्रॉब्लम भी कर लेता है। तो कहने का मकसद ये है कि ठीक है, हर इंसान को अपने आप को स्पॉइल करने का हक है, दैट इज़ टेक्निकली अ वीकेंड, आप उस पे करें। लेकिन रेस्ट ऑफ द डेज़ एक बैलेंस को अपने लिए क्रिएट करें, ताकि आप मिशेल राह बने दूसरे लोगों के लिए, कि वो आपको देखकर आपके घर वाले कहे कि नहीं भई ये सलाद खा रहा था, तो मैं भी खा लूँ। ये फ्रूट खाता है तो चलो कटा ही है तो 2 बाइट मैं भी ले लूँ।
इस तरह से हम इनकरेज करते हैं, हम फैमिली यूनिट्स में रहते हैं और हमें अपने लिए, अपने ऑफिसेज में, अपने घरों में एक एग्जाम्पल बनना चाहिए ताकि लोग उसको देखकर उसको फॉलो कर सके। ठीक है, पार्टीज इज समथिंग अदर, कि भाई पार्टी में कोई खीरे काट के नहीं खा रहा, वो उस वक्त समोसे ही आएंगे, लेकिन अदर देन रोज तो पार्टी नहीं हो रही होती ना। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द पॉइंट कि ये एक पूरा हेल्थ स्ट्रक्चर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। मेडिसिन उसका हिस्सा है, बीमारी उस वक्त आती है तो मेडिसिन भी आ जाती है, लेकिन जब हम बीमारी से फाइट करते हैं तो मेडिसिन के साथ साथ हमें एक अच्छी डाइट भी रिक्वायर्ड होती है। तो वो मेरे हिसाब से हमें देखनी चाहिए। और खास तौर पे आखिर में मैं खवातीन के लिए एक और भी चीज इसमें ऐड करती हूँ, जिनको भूल गए थे हम उसके साथ मेकअप के, कि ये अननेसेसरी जो हम जाते हैं पार्लर्स में और वहां जाने के बाद ये जो तेजी तेजी में थ्रेडिंग, तेजी जी तेजी में वैक्सिंग, गरम गरम हॉट हॉट वैक्स, क्योंकि उनकी तो बड़ी जल्दी हो रही होती है, उनको जिस जमाने में सलून खुले थे, अब तो खैर आजकल बंद है, तो ये एक थोड़ा सा मसला अलग हो गया है। तो वो उसमें, और फिर फेशियल्स, ब्लीचेस, किसी को भी एक्नी है वो प्लीज ये तमाम चीजों को ना करे, डॉक्टर से पूछे, बिकॉज जितनी भी आप फेस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उस पे नए केमिकल्स लगा रहे हैं, एपिलेशन कर रहे हैं, उसके साथ जो फोर्स आ रही है, जो पुल आ रहा है, वो एक्नी को प्रमोट कर रहा है। तो ठीक है। प्लीज ये सब को करने से पहले आप डॉक्टर से मशवरा कर लें। टोटके एक अगेन एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि जी हर एक को टोटके इस्तेमाल करने। बीमारियां अगर टोटके से ठीक हो सकती होती तो फिर अस्पताल में और क्या होता। मैं हमेशा ये सवाल करती हूँ, क्योंकि देखें एक आदमी कोई भी टोटका बना रहा है, वो इंटरनल कॉज पे तो हिट ही नहीं कर रहा। टोटका तो है ही फला हर्ब खा ली, अब वो हर्ब आपकी बॉडी में जाके क्या कर रहा है? किसी की किडनी फेल हो जाती है, किसी का लिवर फेल हो जाता है, वो हर्ब ठीक ही नहीं है। तो बहुत सारी चीजें देखने की जरूरत होती है। डॉक्टर एक अपर, एक उसकी थर्ड आई होती है जो अपर होती है। आपको कुछ भी हो रहा होता है, उसका जिम्मेदार वो डॉक्टर होता है जो आपको ट्रीट कर रहा होता है। तो आप ये समझें कि जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, उसमें आप अननेसेसरीली टीवी पे बैठ के एक अजीब सी चीज देख ली, उसको अजीब अजीब तरीके से बना लिया और फिर लगाने के बाद मजीद मुसीबत में पड़ जाए। दिन रात हमारे क्लिनिक ऐसे लोगों से भरे हुए होते हैं जो यही चीजें आते हैं, वहां देखा ये टोटका, अब ये इतनी मुसीबत में आ गई कि वो बीमारी से भी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टर के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। तो लिहाजा देखना चाहिए कि सेंस और सेंसिबिलिटी प्रिवेल करनी चाहिए। और देखना ठीक है, आप देखें, हर तरह की चीजें देखें, लेकिन करें वो जो एक रैशनल अप्रोच हो, जिससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ने के अलावा खराब होने के बजाय बेहतर हो। बिल्कुल। Thank you so much, Dr. Najia, for giving us a माशा detailed understanding regarding acne. I hope कि हमारे इस डिस्कशन और आपकी गाइडलाइन से हमारी ऑडियंस को इस मसले के हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। Okay, so viewers, now it's time to move on to the live question and answer session, जहां हम देखेंगे कि और क्या सवालात हैं हमारी ऑडियंस के जहन में एक्ने के हवाले से. We'd like to get through as many of your questions as possible. बिल्कुल। Okay, so पहला सजेस्ट सवाल है लीजा फातिमा का. वो कहती हैं सजेस्ट फेस वॉश टू रिमूव स्कार्स एंड पिगमेंटेशन. देखें, आप फेस वॉश के नाम मैंने बताया, बहुत सारे नाम हैं जिनको लेना और बताना तो मुश्किल है, लेकिन यह है कि चूंकि हम जब बात करते हैं अच्छे फेस वॉश की, तो मैंने आपको वही बताया कि बेहतर है कि आप अपने किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को देख के प्रिस्क्राइब करें। स्कार्स एंड पिगमेंटेशन देखिए फेस वॉश से तो हटती नहीं है। जी ठीक है, हम जब एजेंट्स ले रहे हैं तो बिल्कुल हम उसी का पिगमेंटेशन रिमूव करने वाला ऑप्शन आता है, जरूर उसका फेस वॉश लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो अलोन वुडंट डू मच। उसके लिए आपके ट्रीटमेंट्स, आपके तमाम डॉक्टर्स की जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिकेशंस, जो क्रीम्स आती हैं वो, इसके अलावा प्रोसीजर्स जैसे जिसमें लेजर्स हैं, केमिकल पीलिंग है, माइक्रो नीडलिंग है, और बहुत सारे किस्म के ऑप्शंस हैं। तो वो हमें आहिस्ता 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 उनको करते रहना पड़ता है, क्योंकि एक साथ ही क्रीम लगते कोई चीज ऐसे खींच नहीं लेती पिगमेंट्स को। तो जी वो एक ऑन गोइंग लॉन्ग टर्म काम है। तो लिहाजा हम आपको ये पूरा ट्रीटमेंट करना चाहिए, ना कि सिर्फ ये समझ लें कि एक खाली हम बात कर लें कि एक फेस वॉश से काम होगा। इट एक्चुअली नीड्स अ ठीक है. दूसरा सवाल है शर्मीन मजीद का. कैन आई यूज ट्रीटमेंट। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद एक्ने ट्रीटमेंट्स. बिल्कुल, व्हाई नॉट, बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि देखिए एंटी एजिंग जो ट्रीटमेंट आते हैं, उनके अंदर अगर आप किसी एस्थेटिक क्लिनिक में कर रही हैं तो उन वो भी क्योंकि वो सब एक्नी को भी देख रहे होते हैं, तो आप उसके साथ वो एक्नी का ट्रीटमेंट भी उसका कंटिन्यू कर सकते हैं। और ऐसे ही प्रोडक्ट्स आते हैं एंटी एजिंग के अंदर, क्योंकि एंटी एजिंग जो क्रीम है उनके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिनके अंदर जेल्स हैं, जिनके अंदर सेरम्स हैं, इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद है कि हमें सिर्फ वो
थिक क्रीम्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें ज़रूरत पड़ती है, हम उनके साथ जेल्स और सीरम्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपका एंटी एजिंग ट्रीटमेंट भी चलेगा, चाहे वो क्लिनिक के अंदर है, चाहे वो घर के अंदर है, और उसके साथ ही साथ आपका ये भी चलता रहेगा। ओके, ग्रेट। तीसरा सवाल है नादिया इरफान का। प्लीज टेल मी बेस्ट फ्रेकल क्रीम। आई हैव फ्रेकल्स फ्रॉम 3 years, नो मेडिकल इशू। देखिए, अब फ्रैकल क्रीम में वही मैंने बात अभी बताई कि फ्रैकलिंग यूजुअली अगर तो ये डायग्नोस्ड हुए हैं फ्रैकल्स, तो अक्सर लोग मेलाज़्मा को भी फ्रैकल्स कहते हैं। तो पहले तो ये देखने की ज़रूरत है कि फ्रैकल्स हैं भी कि नहीं, और अगर ये फ्रैकल्स वाक़ई हैं, तो ये एक ऐसी कंडीशन है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा आप जाएँगे उसमें धूप में, ये निकलते जाएँगे। तो पहले तो आप धूप को कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं, और अगेन ये क्रीमें ऐसी नहीं, ये क्रीम्स वो नहीं होती कि जिनको आप इयर्स एंड इयर्स यूज़ करते हैं। क्योंकि आप उनसे आप आपकी स्किन उन पे कोई रिएक्ट कर ही नहीं सकती 1 महीने के बाद। तो द आइडियल वे टू ट्रीट इट इज़ टू हैव अ कंसल्टेशन एंड टू चेंज इट एवरी मंथ विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट, नॉट विद द हेल्प ऑफ द ये फार्मेसी गाइज़ जो आपके पास जो नहीं है, जो हर एक को कर देते हैं एडवाइस कि ये लगा दें कि वो, तो इसलिए ये उनका काम नहीं होगा। आपको डॉक्टर के पास जाके ही करवाना होगा। अबीरा आसिफ पूछती हैं, व्हाई डॉक्टर नॉट रिकमेंडेड आइसोट्रेटिनाइन इफ वुमन इज गेटिंग मैरिड। हुँ। देखिए, एक्चुअली देखें, उसमें ये होता है कि हम क्यों नहीं आइसोट्रेटिनॉइन रेकमेंड करते, क्योंकि उसकी एक वजह है। वजह ये होती है कि उसके अंदर इश्यू ये है कि जब हम मेडिसिन किसी को प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो एक्सक्रीट होती है हमारी बॉडी से, स्टूल के ज़रिए, यूरिन के ज़रिए, लिवर इसको डिटॉक्सिफाई करता है, वो सब एक लंबी स्टोरी है। इस ड्रग की ये टेंडेंसी है कि ये जाके टिश्यू में एक्यूमुलेट हो जाती है फॉर क्वाइट सम टाइम, और उसे बॉडी से कंप्लीटली इवैक्यूएट करने के लिए 3 मंथ्स का टाइम, अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर एंड रिसर्च इज डन ओवर इयर्स एंड इयर्स, वो ये बताती हैं कि ये इतना टाइम लेता है। अब हमारे यहाँ होता ये है कि एक तो या तो शादी डिसाइड ही बड़ी ही जल्दी होती है, और अगर हो भी जाए, चले साल भर से भी है, तो उसके सारी शॉपिंग सारा कुछ कर लेने के बाद शादी के कार्ड भी बढ़ जाएं, तो उसके बाद हमको 15 दिन पहले याद आता है कि हमें तो फेस पे दाने, और इतने ज़्यादा दाने, तो चलो अब इसको भी देख ही लें, ये तो खत्म हो जाएँगे। तो जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दुल्हन का सबसे इम्पोर्टेंट उसका फेस होता है, तो वो लोग ज़्यादातर लोग इसकी केयर ही नहीं करते। तो 15 दिन पहले कौन-सा ऐसा बेवकूफ़ डॉक्टर होगा जो उनको आइसोट्रेटिनॉइन कर दे इनकी फ़रमाइश के मुताबिक, और इवन हमें भी पता है। हम सबसे पहले हिस्ट्री ये लेते हैं कि आपकी इस वक़्त हिस्ट्री, आप हैं क्या, मैरिड हैं, क्या है? तो ये पहला सवाल हमारा यही होता है। अगर वो ज़रा-सा भी हमें जवाब देती है, नहीं पता नहीं, अभी डेट है, फिक्स होने लगी है, हम कतई उसमें हाथ डालते ही नहीं। हाँ, दैट इज़ द प्रेफर्ड एंड द रिकमेंडेड medicine to give for any person having moderate to severe and non-cystic acne। जैसे मैंने पहले भी बताया, रिजल्ट्स आर अमेजिंग, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और पूरी दुनिया में ग्लोबली इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन इसकी इंडिकेशन यूज पहले हम पेशेंट देखकर जज करते हैं। कई डॉक्टर, कई पेशेंट्स इतने सोशल मीडिया फोरम पे बैठ के आइसोट्रेटिनॉइन के खिलाफ एक इतना लंबा कसीदा पढ़ते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि अगर ये मेडिसिन खराब होती, तो जहाँ टीवी पे, जहाँ पे रेडियो पे, इतनी जगहों पे इतने इश्तिहार चलते हैं, तो 10 उसके भी चल जाते ना। तो ये 4 लोगों को कैसे पता चला कि ये लोगों के लिए इतनी खतरनाक हो सकती है? तो अपनी दुकान को बिला वजह चमकाने के लिए हम अमेरिकन, यूरोपियन, ब्रिटिश तमाम गाइडलाइंस को पीछे छोड़ दें। मैं खुद किंग्स कॉलेज लंदन से पढ़ी हुई हूँ, सेंट थॉमस मेरा हॉस्पिटल था, हमारा कंसल्टेंट वहाँ पे दिन और रात इतने बड़े परफॉर्मर्स फिल करा के टीनेजर्स को भी यही प्रिस्क्राइब कर रहे थे। तो वो सब पागल हैं, और ये 4-6 लोग यहाँ पे बैठे, नहीं बहन ये कभी ना लेना, इससे बड़े नुकसान हो जाते हैं। तो देखिए, इस तरह की मिसगाइडेंस क्रिएट करने के बाद ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और लोग यही पूछते हैं कि जी उसने मना किया तो आप क्यों ठीक कह रही हो, और आप कैसे ठीक है तो वो क्यों गलत है। तो अपने ये मेडिसिन हमदर्दी का नाम नहीं है, दवाई तो हमेशा कड़वी होती है, और अपनी विश और विल के अगेंस्ट ही जाकर हमें कुछ करना पड़ता है, तब जाकर हम कुछ चीज अचीव कर सकते हैं। तो आइसोट्रेटिनॉइन हमेशा संभल के टेस्ट करके तरीके से देते हैं, मॉनिटर करते हैं, और पेशेंट अक्सर होगा इसी को डिसकंटिन्यू करने पे या इस मेडिसिन के साथ गायब हो जाने के बाद ही जब वापस डॉक्टर के पास आते हैं, तो वो डांट इसी वजह से खाते हैं, और वो डॉक्टर ने हमें बहुत डांटा जी, ये तो उसने कि ये मेडिसिन क्यों ली थी और क्या किया था। तो उसकी वजह यही होती है, क्योंकि देखिए, ये अगर कोई नुकसान कर जाए आपको
और आप अपने हिसाब में 1 महीने की कंसल्टेशन के बजाय 6 महीने बाद डॉक्टर के पास आ रहे हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी अब डॉक्टर के पास नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने आपको 1 महीने के अंदर बुलाया था और वो आपको हमेशा सवाल पूछ के आपकी उसको जज करता है, आपको टेस्ट दे देता है, आपको बता देता है, लेकिन आप जब कर ही नहीं रहे ये काम, तो वो फिर आपको कोई नुकसान भी पहुँचा सकता है। तो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट ज़रूर हैं, इवन के बुखार उतारने वाली के भी हैं, लेकिन हम वो खाते हैं ना, उसकी वजह ये है कि उसको डॉक्टर मॉनिटर करता है, हम मॉनिटर करते हैं, और तबीयत में कोई भी खराबी हो, माशाल्लाह हर बंदा इतना सेंसिबल है कि वो डॉक्टर के पास जा सकता है, और डॉक्टर सुनने के बाद उसको फौरन डिसकंटिन्यू कर देता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर सूट नहीं कर रहा तो वी कैन ऑलवेज स्किप। तो मसला यहाँ पर जो आइसोट्रेटिनोइन का था वो यही था कि साइड इफेक्ट्स होने के साथ हमें ये भी देखना है कि वो बॉडी के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है, और आगे जाके जब वो प्रेगनेंसी की फेज में फीमेल एंटर हो रही होती है, तो वहां कहीं वो बच्चों के लिए इश्यू ना कर दे, क्योंकि इसके टेराटोजेनिक इफेक्ट्स हैं, तो इसके लिए वो मना किया जाता है और स्ट्रिक्टली मना किया जाता है। ओके। सईदा फातिमा नकवी पूछती हैं, I don't get severe acne, but I do get some pimples from time to time, but I feel like my skin isn't fresh. Can you please talk about dull skin too? तो देखिए, डल स्किन होती ही तभी है कि हम पहले धूप में कितना निकलते हैं। अब यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे की स्किन तो डल होनी है। अच्छा, फिर जो लोग क्या प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट्स हम प्रिस्क्राइब करते हैं जो फार्मेसी बेस्ड होती है, और एक होती है जो ओटीसी होती है, जो ओवर द काउंटर मिलती है। अब देखें, आप जैसे शॉपिंग सेंटर में एंटर होते हैं तो आपको हर तरह का ऑप्शन की स्किन क्रीम मिल जाती है, ये ऑयली की, ये ब्राइट की, किसी पे हर एक पे लिखा होता है, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ी वीकनेस ही यही है कि जी चिट्टी स्किन चाहिए, गोरा कलर चाहिए। तो उसके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जब हम वहां इस चीज की बात करने के लिए एक ओवर द काउंटर प्रोडक्ट उठाते हैं, तो वो मासेस के लिए है, वो एक सर्टन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है जिनकी स्किन पे कोई इश्यू है या वो डिजीज है। वहां हमें आना पड़ता है फार्मेसी के पास, क्योंकि हम फार्मेसी को जज नहीं कर पाते कि हमारे पास कौन सी पिक हमें करनी है मेडिसिन, और फार्मेसी से आइडियली ऐसे मिल भी नहीं रही होती, और अगर मिल भी जाए तो वी डोंट नो, तो वी नीड अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन टू अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट। क्योंकि होता ही है कि जब हम जाकर कोई रैंडम चीज उठाते हैं ना, वो है कॉस्टली, उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, और अगेन हम डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, जैसे इनको ऑन एंड ऑफ एक्नी निकल रही है, अगेन शी इज अ कैंडिडेट फॉर अ ट्रीटमेंट, बट वो ट्रीटमेंट कितना कम और कितना ज्यादा है, वो चीज की जो एक्चुअल जजमेंट है वो डॉक्टर कर सकता है। ठीक है। फाइजा जीशान पूछती हैं, कैन सीरम्स बी यूज्ड फॉर एक्नी प्रोन स्किन? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे सीरम्स आते हैं, आप बिल्कुल अपने कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। सीरम तो सबसे ज़्यादा बेस्ट ही है इस एक्नी प्रोन स्किन के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल स्किन को, पोर्स को क्लॉग नहीं करते और हमारे स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो वो वाकई बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल हैं, और आप बिल्कुल यूज़ करें और उसको इस्तेमाल करें। जी। Okay. Athar हाँ। Siddiqui, what dietary precautions would you advise for a patient suffering from acne? देखिए, डाइटरी प्रिकॉशन जैसे मैंने पहले बताई, इसका इशू ये है कि आप सच तो कोई नहीं सिवाय चिकन की एक्सेसिव को ना खाएं, जिस तरह चिकन बहुत ज़्यादा लोग खा रहे होते हैं, और बाकी ये है कि एज सच कोई नहीं, एक राइट बैलेंस डाइट लेना शुरू करें, और डेयरी प्रोडक्ट्स वाकई बहुत काम करती हैं, आपको डेयरी प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, वेजिटेबल्स लेने चाहिए, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ऐसे डाइटरी प्रिकॉशंस अदर देन चिकन इज बेसिकली हम कोई और नहीं कहते। बीफ के लिए कहते हैं कि अगर अक्सर लोगों को बहुत नोडुलर सिस्टिक एक्नी हुई हुई है, तो उसके बीफ लेने से थोड़ी, और सी फूड लेने से थोड़ी सी इचिंग ज़्यादा होती है, तो बस अदर देन दिस इतना कुछ वो नहीं ठीक है। है। और बताइए। देखिए, हाँ, ये अब एक और क्वेश्चन आया सामने लिखा हुआ, इज डैंड्रफ कॉज एक्नी? तो जो है वो डैंड्रफ, देखिए होता ये है कि जब सिवेशियस सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे स्कैल्प के ऊपर, हमारे फेस के ऊपर, तो उसकी वजह से जो है हम जब एक्नी का भी इलाज कर रहे हैं साथ साथ सिवेशियस सिक्रीशंस का भी साथ इलाज करना चाहिए। ऑब्वियसली पेशेंट सर नहीं धो रहे होते रोज, और जो ऑयलीनेस आपके स्कैल्प में भी ज़्यादा फील हो रही होती है, वो ऑब्वियसली आपके फेस और बॉडी में भी आ रही होती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे शैम्पूज अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा लें जो एंटी डैंड्रफ हैं, होते हैं, और आप रोज शैम्पू करें, लादर बना के थोड़ी देर छोड़े रखें, और उसके बाद जो है उसको रिमूव करें 5-7 मिनट रखने के बाद। Okay. So just one last question हाँ हाँ, before we जी। wrap up our session.
वलीद कुरैश, मेलानिन की प्रोडक्शन क्यों ज़्यादा होती है और किस वजूहात से होता है? उसके लिए हम कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं? देखिए, मेलानिन की प्रोडक्शन हमारी हेरिडिटरी, हमारी हार्मोन, हमारे सोलर एक्सपोज़र इन सब की वज़ह से हो रही होती है और हर एक के अलग फैक्टर्स हैं, जो डॉक्टर खुद जज करेगा, आपसे बात करेगा, निकालेगा आपकी डाइटरी फैक्टर्स। मोस्टली हेरिडिटरी भी बहुत होता है। अब कई लोग सारा दिन बाइक पे घूम रहे हैं, मार्केटिंग के काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये समझना चाहिए कि जब तक ये आप इन चीज़ों को नहीं कम करेंगे या नहीं इसको डायग्नोज़ कर सकते, तो ट्रीटमेंट कैसे होगा? हुँ, फिर हुँ। इसके बाद इसका वन शॉट कोई ट्रीटमेंट है नहीं। एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हैं तो वो भी आपको मल्टीपल कराने होते हैं क्योंकि पिगमेंट फिर बनता है क्योंकि हमने कॉज़ेटिव एक्ट जो कॉजेज़ हैं उनको इतना तरीके से डायग्नोज़ नहीं किया हुआ होता और बस हर आदमी समझता है कि बस रंग व्हाइट करने की क्रीम कहीं से भी मिल गई और मेरा काम हो जाएगा। कॉज़ वहीं अपनी जगह खड़ा है, खातून है जिसमें हार्मोन्स खराब हैं, हमने अगर उसको नहीं किया तो वो कैसे मुमकिन हो सकता है? इसी तरह मेल के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब तक हम उसको नहीं करेंगे डायग्नोज़ तो हम उस तक पहुँच नहीं सकते। Okay, so some more questions हुँ, that we'd हुँ। like to take. सोनी खान, मेरी एक्नी स्किन है, पूरा साल फेस पर एक्नी रहती है, ब्लैक हेड्स भी बहुत हो गए हैं, प्लीज कुछ बताएं। हुँ। देखिए, अब अगेन शी नीड्स अ डॉक्टर फॉर सबसे इम्पोर्टेंट बात और ये जो पार्लर में जाके ब्लैक हेड्स को पिक करने का सबसे बड़ा रुझान है, अगेन ये बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स दोनों कुछ भी हैं, वो दोनों एक्ने के ज़ुमरे में आते हैं और दोनों का एक इलाज है, दोनों की क्लेंजिंग के अपने सर्टेन ऑप्शंस हैं और उसके साथ ही साथ उनके फेस वॉशेज़ और सनब्लॉक हैं, तो वो उसके बगैर मुमकिन नहीं है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। Okay, so here we have another question. Jasmine पूछती है, how to get rid of post acne scars resulting in two toning. देखिए, पोस्ट एक्ने स्कार्स की पहले सबसे पहले तो एग्ज़ामिनेशन होती है और देखना पड़ता है कि उनकी हम्म, स्कार की इंटेंसिटी है क्या? उसके हम्म, मुताबिक उनका ट्रीटमेंट हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, जिसके अंदर केमिकल पीलिंग आ गई, जिसके अंदर लेज़र्स आ गए, जिनके अंदर माइक्रोनीडलिंग आ गई, उसके साथ टॉपिकल एजेंट्स भी होते हैं। तो वो सब ऐसा ही है, ऐसे घर बैठकर ये चीज़ ऐसे नहीं हो पाएगी। आपको जाकर डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन भी लेनी पड़ेगी, उसका जी। ओपिनियन भी लेने पड़ेंगे और उसके साथ मुख्तलिफ ट्रीटमेंट का एक ड्यूरेशन है, ये उसके साथ ये चलेगा। एक Okay. दफ़ा का वो नहीं। Mm-hmm. Okay, so this was our last question. Well, it's time to wrap up the session. Thank you to our audience for joining us today. And we would like to pay a special thanks to Dr. Najia for giving us some of her time from our busy schedule and providing every one of us an opportunity to learn about the prevention and management of acne vulgaris. So थैंक thank यू you so वेरी much. मच फॉर हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस सेशन एंड आई होप आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे वो आंसर हो गए होंगे और अगर जो नहीं है वो आप इनको लिख सकते हैं आप सांते के जो अपने पेज है तो फिर हम उसको आंसर करके आपको टीम राब्ता कर लेगी। बताने का मकसद सिर्फ यही था कि बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक्ने के साथ रिलेटेड होती हैं और जितनी डिस्कशन हो जाए, जिन पे इतना काम हो जाए वो बेहतर है और अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्वियसली वो हमेशा अनआंसर्ड रहते हैं। तो हम उन पे जो देंगे क्वेश्चन तो फिर उसके ऊपर मैं आपको रिप्लाई करके आपको दे दूँगी, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं That's पेज great. पर। एंड वन्स अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस। You're welcome. Thank you, viewers, for watching. We hope that you found this session informative and useful. Don't forget to follow our page for more live sessions on different dermatology and cosmetology related topics. You can also inbox us your queries and questions. See you all in the next session. Have a great day. Take care and Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।